Very good afternoon to all. Today we'll discuss about the preparation of childbirth and parenthood. The first is what's the meaning of the childbirth? The human act or the process of giving birth that is called the childbirth. Now, the natural childbirth. The natural childbirth means labor is a natural process without applying any kind of the intervention, any kind of the surgical or medical intervention, because in a normal delivery there is no need of any kind of information. Okay, so when you're not applying any kind of intervention, any kind of mechanical action, that is a normal labor, because labor is a natural process. Okay. Childbirth preparation, a nursing intervention defined as providing the information and support to facilitate the childbirth and to enhance the ability of an individual to develop and perform the parenthood role. Okay, so being a nursing person, you have to provide the information and support to the woman, or we can say that a pregnant woman, for facilitating the childbirth and enhance the individual mother's ability, okay, to develop and perform their parental role. So, what are the responsibilities being a means being a pregnant woman? She have to toward their baby, toward their health. You have to provide these kind of information to the mother, like during the pregnancy, how they will maintain their health, what kind of the medications they have to take, which are necessary for the health of the mother as well as the baby. Okay, and you have to educate the women regarding the how many visits they have to compulsory attend during the time of pregnancy. Okay, what kind of the supplement they should take, and it's compulsory for the women. Okay, for the prevention of the further complications. So all these things you have to provide information to the woman. Surgical preparation, providing care to the patient immediately prior to the surgery and verification of the required procedure or the test and documentation of clinical record. So in the surgical preparation, you have to provide the care to the patient immediately prior to the surgery. And before sending the patient into the OT, you have to provide the care to the mother. Care is like the physical. You have to provide the psychological support for the reduction of the anxiety and the fear, because every individual having a fear regarding the surgery, any kind of the surgery, not only for we can say that the LCS. Okay, and the verification of required procedure or the test and documentation in the clinical record. We can, before sending the patient into the surgery, we can verify all the records which are necessary for the LSCS process. Now the active birth. Okay, so what is the active birth? The childbirth during which the mother is encouraged to be an active participant. Okay, इस ऐसी बर्थ प्रोसेस जिसमें मदर क्या करती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है. हम मदर को इंकरेज करते हैं कि वो चाइल्ड बर्थ प्रोसेस के लिए एक्टिव पार्टिसिपेंट करे. Introduction. Now, the childbirth is one of the greatest event in every woman's life. हर एक woman की life में great event होता है childbirth. Okay. At this time, the mother needs a lot of help for the realization and the acceptance of the childbirth as a normal physiological phenomena. तो उस टाइम पे मदर्स को नीड होती है हेल्प की, सो दैट कि वो रियलाइज कर सके कि चाइल्ड बर्थ एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, एज लाइक द मेंस्ट्रुएशन, जैसे कि हर उसे मंथ से मेंस्ट्रुएशन होती है जिससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. एज लाइक बर्थ इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोसेस. She need to develop a healthy attitude toward the pregnancy. Whenever the mother conceive the baby, that time she should develop the a positive attitude toward the pregnancy. She accept all the changes which are occurring in their body, like फीमेल का साइज बढ़ रहा है, यूट्रस का साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉडी का वेट बढ़ रहा है, या फिर बॉडी में जो डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, मदर हैविंग अ माइनर डिसऑर्डर लाइक nausea, vomiting, slight itching, and discoloration of the skin. These all are very common during the time of pregnancy. So we have to provide all this information to the woman. So the women should prepare a positive attitude toward the pregnancy. Okay.
and having a safe and emotional satisfying experience of the labor, as well as we have to provide the information regarding the labor, that is the labor is a natural process, no any information are needed for the childbirth process, जब तक कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है, तब तक हमें उसमें कोई भी इंटरवेंशन की नीड नहीं होती, बिकॉज लेबर इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड रैपिड रिकवरी बोथ मेंटली एंड फिजिकली। और इसके साथ हम जो वुमेन्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि डिलीवरी के बाद, बेबी के डिलीवर होने के बाद मदर की फिजिकली और मेंटली रिकवरी अर्ली हो, ठीक है। तो अर्ली होने के लिए क्या चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट इज शी शुड अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, ओके। द नेचुरल चाइल्ड बर्थ अप्रोचेस, डॉक्टर ग्रेंटली डिक रीड originated natural childbirth movement in 1933 in England. The basis of the program was the realization that the childbirth was a normal physiological occurrence, as such should not be painful. He believed pain was a mental in origin. तो अकॉर्डिंग टू ग्रैंटली डिक रीड ने 1933 में इंग्लैंड में फर्स्ट चाइल्ड बर्थ मूवमेंट के लिए एक नेचुरल चाइल्ड बर्थ मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, जिसमें उसने ये रियलाइजेशन, ये प्रोग्राम में ये रियलाइजेशन करवाया कि जो चाइल्ड बर्थ प्रोसेस है वो क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल अकरेंस है, ठीक है, और ये कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं है। हम क्या करते हैं अपनी वो फेयर की वजह से, एंजाइटी की वजह से उस पेन को इनहांस कर लेते हैं, मेंटली उस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हमें पेन होना है, ठीक है। तो childbirth preparation program. So what is the childbirth preparation program? The childbirth education classes was developed for meeting the woman pain reduction need during labor. Okay. तो childbirth education classes में जनरली क्या होता है, डेवलप किया जाता है, क्यों डेवलप किया जाता है, फॉर मीटिंग द वुमेन, जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, इनको मीट आउट करने के लिए, फॉर pain reduction need during pregnancy, how they will reduce the pain during the time of the labor, okay. The goal is program should help the mother and the couple to cooperate through the problem of the labor in a satisfactory manner. तो ये प्रोग्राम क्या करता है, मदर या फिर जो कपल है, जो अब अपकमिंग पेरेंट्स हैं, ओके, वो कॉपरेट कर सके थ्रू आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द लेबर इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर। जो भी लेबर के टाइम पे मदर्स को जो भी पेन होता है उस सब में वो क्या कर सके, कॉपरेट कर सके एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल से। अगर उसे पहले से वो प्रोसेस पता होगी, दे अंडरस्टूड द प्रोसेस, ओके, so they definitely cooperate with you. It provides a coping skill and impetus to practice what they have learned. ठीक है, ये कोपिंग स्किल प्रोवाइड करते हैं कि उस टाइम पे आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट, बिकॉज लेबर इज अ नेचुरल प्रोसेस, चाइल्ड बर्थ इज अ नेचुरल प्रोसेस, एंड बेबी के बर्थ के टाइम पे जो पेन अराइज होता है उसके रिडक्शन के लिए पहले से उनको एक कोपिंग स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड की जाती है, सो दैट कि वो उसकी प्रैक्टिस करें और उसे लर्न कर सकें, ठीक है। Objective reducing anxiety, this is very important. I told as the Dr. Rekni told you, means said that like कि जो हम पेन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर मदर्स को इज अ नेचुरल, बट वो पेन की इंटेंसिटी कब बढ़ती है, जब मदर को लैक ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है, उसे फेयर होती है, एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिड्यूस द एंजाइटी, उसके लिए हमें पहले एंजाइटी को रिड्यूस करना है। प्रोवाइडिंग द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन and the information regarding the process of labor you have to provide to the pregnant woman before starting the labor, okay. Maintaining a focus on current concerns, whatever the problem she having, you have to maintain this problem, you have to sort out this problem, you have to focus on this thing, okay. Now the method of childbirth preparation. So there are the four methods of childbirth preparation. The first one is the Reed method. The second one is the Lemus method. The third one is the modified Lemus method, and the fourth one is the Bradley method. So there are the four methods of preparation of labor. So the first method is, this is the method of the psychophysical preparation of the childbirth designed by the Dr. Granty Dick Reid. ठीक है, डॉक्टर ग्रेंटी डिक रेड ने रेड मेथड इसे लेकर आ गया है
The read method is the Dr. Grantly Dick Reid ने कहा कि if according to this method they have to focus on the psychophysical preparation, जो हमारी फिजियोलॉजिकली और जो साइकोलॉजिकली जो प्रोसेस है उसे हम पहले से क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द मदर, यानी कि मदर को पहले से ही सारी प्रोसेस एक्सप्लेन की जाती हैं, ठीक है, सो दैट की मदर जो है मेंटली प्रिपेयर रहे और वो लेबर की प्रोसेस में कोऑपरेट करे। It was a natural childbirth program. He held the view that childbirth is a normal physiological process. दिखा है कि इस प्रोग्राम में क्या होता है, फिर इसको दिखाया जाता है कि लेबर एक नॉर्मल चाइल्डबर्थ प्रोसेस है एंड दैट द पेन ऑफ द लेबर इज ऑफ अ साइकोलॉजिक ऑरिजिन। और जो पेन एग्जैक्टली राइज होता है, जो इतना हाई इंटेंसिटी ऑफ जो पेन है, वो जनरली एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। द फेयर टेंशन पेन सिंड्रोम, जिसे हम फेयर टेंशन पेन सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि फेयर एंजाइटी होने की वजह से पेन अराइज होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ पेन अराइज होता है। He counted the woman fair with the education about the physiological process. And ये fair क्यों अराइज होता है? Due to the physiological process. Okay, what are the physiological process of the labor? Encourage a positive attitude. So Dr. Grandi ने encourage किया toward the positive attitude toward the childbirth process. ठीक है, कि childbirth process के लिए आपको एक positive attitude develop करना है। The correct false information and the lead tour of the hospital before birth. ठीक है, तो according to Dr. Grandi, they providing a correct information to the women and they also prevent the myth तो जनरली हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं। लाइक जैसे आपने देखा होगा जो रूरल एरियाज हैं, यहाँ पे जो जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, स्टिल वहाँ पे कल्चर फॉलो किया जाता है, रिलीजियस फैक्टर्स जो रिलीजियस मिथ्स हैं फॉलो किया जाते हैं। दे जनरली अवॉइड टू हॉस्पिटलाइज डिलीवरी। दे आर थिंकिंग लाइक दैट कि जो होम डिलीवरी होती है वो बेस्ट है, बट दे डोंट नो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन राइजिंग इन अ होम डिलीवरी। तो जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग लेबर के, कि मदर को एक्सटेंसिव पेन होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, लाइक सो मैनी मिथ्स, लाइक तो ये सारी मिथ्स को रिड्यूस कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लेबर प्रोसेस। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन आपको कब प्रोवाइड करनी है? पेशेंट के हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले, यानी उसे लेबर स्टार्ट हो गया है तो लेबर स्टार्ट होने से पहले ही उसे सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। Now, in order to decrease the tension, he developed a series of breathing exercise used during the various stages of labor. तो टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, लेबर के टाइम पे मदर को फेयर एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए फीमेल को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस टीच कराई जाती हैं। ठीक है, दैट के वेरियस स्टेजेस ऑफ लेबर, जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज में वही डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। ही incorporated a series of physical exercise to be performed regularly in a classes, particularly at home during pregnancy. तो इसके अलावा डॉक्टर डेलिंग ने कहा कि जो फीमेल्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उन्हें ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि एंटीनेटल एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, योगा करवाया जाता है, दे हैव टू डू। उससे क्या होगा? बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमारे सिर्फ एक्सरसाइज करने से या योगा करने से ही रिड्यूस हो जाते हैं, जिसके लिए हमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं करना होता। अंडरस्टूड? So during the pregnancy, they have to do all these things. The woman is helped to manage the labor and delivery using the RED method in following way. Okay. So according to RED method, woman अपने labor को मैनेज कर सकती हैं। जैसे reach before the clinical dilatation reaches 7 centimeter and 2 to 5 contraction in the minute last for 30 to 40 seconds. ठीक है, तो आपको क्लिनिक यानी कि हॉस्पिटल में पहले आ जाना है। कब? 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन होने से पहले आप हॉस्पिटल में आ जाओ। ठीक है, जो आपको 2 to 5 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, यानी 10 मिनट्स में आपको 2 से 5 लेके कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, 2 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, उससे पहले आप हॉस्पिटल में आ जाओ। और जब को 30 to 40 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए तब हॉस्पिटल में आ जाओ, बिकॉज जब पे क्या है, इंडिकेशन है कि अब बेबी कभी डिलीवर्ड हो सकता है। ओके, so mother lie on a back with her knees
bent abdomen breathing is used during the contraction. अगर मदर को कॉन्ट्रेक्शन अराइज हो रहे हैं तो मदर को क्या करना है, लाई ऑन अ बैक, यानी कि सुपाइन पोजीशन में लेटना है, अपनी नी को बैंड करनी है और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी है, एब्डोमेन ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे। हर हैंड ऑन द प्लेस ओवर हर लोअर एब्डोमेन, उसका जो हैंड है उसके लोअर एब्डोमेन में प्लेस करना है। ब्रेथ स्लोली एंड डीपली इन थ्रू नोज आउट ऑफ द एंड आउट फ्रॉम द नाक, यानी कि नाक से सांस लेनी है और मुंह से सांस छोड़नी है, ठीक है। इनहेल एक्सपेलेशन की प्रोसेस करनी है। एब्डोमेन वॉल रेज विद रीच इनहेलेशन, जब आप सांस ले रहे हो तो आपकी एब्डोमेन वॉल अप हो, विच सी कैन फील विद द हैंड, और जो उसने अपना हाथ रखा है एब्डोमेन में वो उसे फील कर सकती है। जैसे आपने नाक से सांस ली तो आपका एब्डोमेन अप होना चाहिए, ठीक है, और जब रिलीज कर रहे हो तो डाउन होना चाहिए, ठीक है। The rate of the breathing is number more than 6 in 30 seconds, यानी 30 सेकेंड में 6 ब्रीथिंग आपको लेनी है, और 12 to 18 इन वन कॉन्ट्रैक्शन, और एक कॉन्ट्रैक्शन के बीच में 12 to 18 टाइम आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, ओके, लाइक दैट। आपको पिक्चराइजेशन दिख रही होगी, इस डायग्राम में लिखा है एक फीमेल है जो सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई है, उसके नी क्या है, इस तरह से फ्लैक्स हैं, उसका एब्डोमेन अपने लोअर, उसका हैंड अपने लोअर एब्डोमेन में है और वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है। और कब कर रही है, जब से कॉन्ट्रैक्शन राइज हुई है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। So during late part of the first stage of labor, after 7 centimeter of the cervical dilatation, contraction are 2 minutes apart and last for 40 to 60 seconds. 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन के बाद, यानी सर्वाइकल डायलेटेशन अगर 7 सेंटीमीटर हो गया है, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेट पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो लेट पार्ट होता है, कब होता है, जब 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन पर 2 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, और कौन से कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, 40 to 60 सेकंड की कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग इज यूज्ड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, तो उस टाइम पे क्या करनी है, आपको डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग करनी है। अब कैसे करोगे, हैंड आर प्लेस साइड ओवर द रिब्स, ठीक है, तो रिब्स की साइड में आपको हैंड रखना है। इनहेल थ्रू द नोज, इनहेल करना है नोज से, एक्सहेल करना है माउथ से। सेम आपने जैसे एब्डोमेन ब्रीथिंग करी थी वैसे डायफ्रामेटिक करनी है, बस इसमें आपको जो हैंड है आपको आपकी रिब्स में रखना है, ठीक है। एब्डोमेन वॉल डज नॉट रेज and breathe no more than 6 breath in 30 seconds. तो आपको जब भी आप ब्रीथ कर रहे हो एब्डोमिनल वॉल उसमें रेज नहीं होना है, बिकॉज अभी आप डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी चेस्ट वॉल रेज होगी, अंडरस्टूड। एंड यू शुड नॉट ब्रीथ मोर देन 6 ब्रीथ इन 30 सेकंड, 30 सेकंड में सिर्फ 6 ब्रीथ ही करने हैं, उससे ज्यादा ब्रीथिंग आपको नहीं करनी, ओके, लाइक दैट। ये आपकी सुपाइन पोजीशन है, नी आपका बैंड है, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके हैंड बोथ चेस्ट के साइड में है, ठीक है, और आप यहाँ पे डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कर रहे हो, यहाँ पे एब्डोमेन नहीं हो रही है, हमारी डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग हो रही है, ठीक है। और ये कब करनी है, लेट स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज, यानी कि जब पेशेंट का 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो चुका है। नाउ ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, तो व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, पूजा? Yes, ma'am. What is second stage of labor? Second stage of labor, ma'am. वो डिलीवरी से लेके मैम प्लेसेंटा, Full dilatation of the cervix to the expulsion of the baby, that is your second stage of labor, right? yes ma'am. You forget? Anyway, so during the second stage of labor, contraction occurs vary 2 minutes, last for 60 to 90 seconds. अब देखो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई है, यानी कि 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो चुका है। अब मदर को पर 2 मिनट्स में कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कैसी है, 60 to 90 सेकंड की है, एंड कंप्लेन विद एन अर्गो टू बेयर डाउन एंड अ पुश, और मदर को कैसे अर्ज होती है, बेयर डाउन प्रोसेस की अर्ज होती है, ठीक है। The mother lie on the back with the head and shoulder supported in a semi-sitting position. तो मदर क्या करता है, lie on back यानी supine position में with the head and shoulder
सपोर्टेड, यानी इसके हेड और जो शोल्डर हैं वो क्या होते हैं, सपोर्टेड होते हैं इन अ सेमी सिटिंग पोजीशन। मतलब को सेमी सिटिंग पोजीशन में, सेमी सिटिंग का मतलब होता है जैसे आपको फॉरवर्ड पोजीशन दी जाती है ना, तो हाफ फॉरवर्ड पोजीशन होती है, ठीक है। शी इज हेल्ड टू डाउन her leg up holding them with her hand behind the lower thigh। तो कहा जाता है कि अपने दोनों जो हैंड है उससे वो लोअर थाई में इस तरह से वो उसे होल्ड करे, ओके। थाई ऑन हर एब्डोमेन एंड लेग अपार्ट, ठीक है। जो थाई होंगी वो उसके कहते हैं एब्डोमेन साइड में होंगी। एट ईच कॉन्ट्रेक्शन बिगिन, जब भी कॉन्ट्रेक्शन आए, शी रेज हर हेड, ठीक है, तो वो अपने हेड को उठाए इस तरह से अप करें एंड टेक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, और डीप ब्रीथ करें, यानी कि जब कॉन्ट्रेक्शन आ चुकी हैं होने के बाद, ठीक है। टक चिन ऑन द चेस्ट एंड ब्लॉक द स्किप ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग एंड बेयर डाउन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि जब उसे 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो रहा है तो उसे डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग करनी है। अब 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन के बाद अब डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कर रही है, उससे पहले वो एब्डोमेन ब्रीथिंग कर रही है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन के बाद मदर को पर 2 मिनट में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है एज लाइक ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ओके। और 6 to 90 सेकंड के ही कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। बट जब उसे कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर से क्या करना है, एक डीप ब्रेथ लेना है, अपने चिन को टच करना है चेस्ट से और ब्लॉक कर देना है एक ब्लॉक कर देना है एयर को लंग साइड से, ठीक है। एंड देन बेयर डाउन प्रोसेस करनी है, ठीक है। पुश करना है, प्रेशराइज करना है लोअर साइड में। अंडरस्टूड। यूज ऑफ Yes, ma'am. अनदर aspects of the rain method strongly recommended that the woman in the labor not lie on her back, ठीक है। Supine hypotension is the result of this position because uterus can fall back, occluding the vena cava, and decrease the volume of the blood return to the heart, and it lead to reducing the volume to cardiac output. It leads to decreased placental perfusion and inadequate supply of the oxygen to the fetus. Okay. So use of the another aspect of the REAT method strongly recommended. Another aspect क्या है इस method का कि that is it is strongly recommended that the woman not lie on her back। अगर woman क्या रहती है supine position में रहती है तो उसे supine hypertension होने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्यों? Because uterus क्या करता है, uterus can fall back, अगर हम इस तरह सुपाइन पोजीशन में रहेंगे तो यूट्रस का फॉल हो जाएगा बैक साइड में, ठीक है। एंड इट कैन कंप्रेस द वेना केवा, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम, ब्लड का जो वॉल्यूम जो रिटर्न हो रहा है हार्ट साइड से वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसके डिक्रीज होने की वजह से जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से प्लेसेंटल परफ्यूजन होगा, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन, अगर प्लेसेंटा को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो प्लेसेंटा से फीटस को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, फीटस में क्या होगा, हाइपोक्सिक कंडीशन आएगी, उससे क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी फीटस में, ठीक है। Now, Leamy's method. Okay. So generally, rate method में हमने क्या पढ़ा? 3 point is very important. Before the 7 centimeter of dilatation, you have to reach the clinic, and you have to do the deep breathing exercises, abdomen exercises only. Okay, you have to lie on your back, and next one is after the 7 centimeter dilatation, you have to breathe out minimum 6, not more than 6, and you're having of each contraction arising within a 2 minutes, okay, and 60 to 90 second contractions, and you have to do the which exercises, diaphragmatic exercises, ठीक है पूजा। देखो Yes, ma'am. पहले हमें क्या करना है, 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन से के बाद अगर मदर 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गया है तो 7 Yes, सेंटीमीटर ma'am. डायलेटेशन तक वो हॉस्पिटल आ जाए, ठीक है। जब से 7 Yes, ma'am. सेंटीमीटर हो तो उस टाइम पे वो एब्डोमेन एक्सरसाइजेस करें। जब उसे 7 सेंटीमीटर हो गया है उसके बाद का जो स्टेज यानी कि लेट स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर 7 से 10 के बीच में, जबकि कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन राइज होते हैं, डायलेटेशन इंक्रीज होता है,
ठीक है, द टाइम Yes, ma'am. कॉन्ट्रैक्शन विल राइज 60 to 40 to 60 सेकेंड, विद इन 40 to 60 सेकेंड। ओके, तो उस टाइम हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो डायफ्रामेट्रिक एक्सरसाइजेस करे जिसमें हैंड उसके बोथ चेस्ट के साइड में होंगे। ठीक है, अब Yes, ma'am. बट लेट मेथड किसी और ने यूज किया था एंड दे टोल्ड लाइक अगर हम फीमेल को सुपाइन पोजीशन देते हैं पेशली लेबर के टाइम पे तो यूट्रस का है फॉल डाउन हो जाता है बैक साइड में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिटर्न हो रहा है, जो कार्डिक वेना केवा क्या होती है, कंप्रेस होती है। ठीक है, तो जो हार्ट में जो Yes. रिटर्न हो रहा है ब्लड, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है और प्लेसेंटा को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, प्लेसेंटा नहीं हो पाता। सप्लाई नहीं हो पाती और रिव्यू क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, तो हम उस टाइम पे यानी कि जब वो लेबर की ब्लड लेबर में जब वो वेट ऑन प्रोसेस कर रही है तो उसे सुपाइन पोजीशन नहीं देना। ओके, नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द लेमीज मेथड। लेमीज मेथड में हम क्या करते हैं, अ मेथड ऑफ द psychophysical preparation of the childbirth was developed in 1950। इस psychophysical preparation से जिसमें mental और physical दोनों तरीके से मदर को प्रिपेयर किया गया था और ये 1950 में स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच ऑब्स्टेट्रिशियन ने स्टार्ट किया था ये। ठीक है, इस मेथड इज अ पेनलेस चाइल्ड बर्थ। ये मेथड क्या है, लेमीज मेथड एक पेनलेस चाइल्ड बर्थ प्रोसेस जहाँ पे मदर को पेन नहीं होता, become popular in 1960। ये 1960 में पॉपुलर मेथड था डिलीवरी के लिए। इन दिस क्लासेस आर गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टीच द, अब जो ये लेमेस मेथड था इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उन्हें टीच किया जाता था रिगार्डिंग फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, कंसीविंग कैसे की जाती है, कंसीव में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस कैसे की जाती है। ठीक है, चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस में मदर को किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑल दिस थिंग ये सारा टीच किया गया लेमेस मेथड में। ठीक है, एक्सरसाइज टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द एब्डोमेन मसल्स, इसके अलावा जो फीमेल हैं उनको एक्सरसाइजेस कराए गए एज you as we know that during time of pregnancy it's very necessary to do some light exercise and the yoga for the prevention of further complication, जैसे कि blood pressure है या sugar है या thyroid problems हैं। okay? The technique of the breathing and the relaxation, और इस मेथड में फीमेल्स को टीच किया गया ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड द रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अर्ली पार्ट मीन कि आपके फर्स्ट 0 से लेके 6 सेंटीमीटर ऑफ डायलेटेशन तक। ठीक है, द मदर डज स्लो द चेस्ट ब्रीथिंग ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, जब भी मदर को पेन आए तो वो चेस्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करे। एब्डोमेन वॉल डज नॉट मूव, जिसमें एब्डोमेन वॉल मूव नहीं होनी चाहिए। शी मे परफॉर्म और रिदमिक fingertips massage on her the lower abdomen। respiration rate is 10 to 12 and deep breath before and after contraction, यानी कि जब भी उसे पेन आए, ये हम बात कर रहे हैं अर्ली पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि जब उसका 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो उस टाइम पे मदर को चेस्ट एक्सरसाइज करनी है, एब्डोमेन ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है, चेस्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है जिसमें कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी होंगी। और ये कब करनी है, कॉन्ट्रैक्शन आने से पहले और कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद। द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज, और फर्स्ट स्टेज एंड होने पर मदर अर्ज टू बेयर डाउन पुश ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, शी अवॉइड द पुशिंग before full dilatation by combining the several light, shadow and breath in the chest with short puffing exhalation as the urge to increase during contraction। तो अगर मदर का डायलेटेशन नहीं है यानी कि 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन नहीं हुआ है तो शी शुड अवॉइड द बेड ऑन प्रोसेस। ठीक है, वो सिर्फ पुशिंग से अवॉइड करना जब तक कि उसका 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन नहीं हो जाता है। ठीक है, जब तक वो कैसे करेगी, उसे शैलो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी है, चेस्ट एक्सरसाइजेस करनी है। नाउ ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, अब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर यानी कि फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स हो चुकी है। द मदर हेड एंड शोल्डर आर द सपोर्टेड ऑन पिलो, जो मदर का हेड होता है, शोल्डर है वो पिलो से सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, फॉर द रिलैक्सेशन एंड द कंफर्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन शी हेल्प टू ड्रॉ हर लेग्स बैक एंड फ्लेक्स द थाई,
कहा था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर, जैसे कि उसे कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, फुल सेंटीमीटर डायलेशन हो गया तो मदर बेयर डाउन प्रोसेस करेगा, तो वो क्या करना है, लेग्स को फ्लेक्स करना है अपनी एब्डोमेन की तरफ, ठीक है। अब जो थाइज है उन्हें एब्डोमेन के अगेंस्ट इस तरह से रखना है, ठीक है। होल्ड देम बिहाइंड द लोअर थाई विद द हैंड, और जो हैंड है उसको लोअर थाई में रखना है, सपोर्ट करना है थाई को। हर चिन इज टक ऑन हर चेस्ट, उसका जो चिन है वो चेस्ट में टक होना चाहिए, और उसे एयर ब्लॉक करने हैं लंग साइड से, और एक फुल प्रेशर देना है। पर प्रेशर कब देना है, जब मदर को कॉन्ट्रैक्शन आए। ऐसा कब करना है, जब मदर को कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो अपने उसे नी को बैंड करना है, अपनी जो थाइज है, ऊपर थाइज है उसे एब्डोमेन में रखना है, ठीक है। एंड जो लोअर थाइज है उसे हैंड से होल्ड करना है, ठीक है। अपने चिन को अपने चेस्ट से टक करना है, सो दैट कि जो लंग से एयर आ रहा है वो ब्लॉक हो जाए और आप एक कंप्लीट प्रेशर दे सको लोअर साइड में, ठीक है। मॉडिफाई लेमेस मेथड, इन दिस editing some information on the prenatal nutrition, infant feeding, cesarean section birth varies from the usual birth, discussion of the sexuality and the parenting coping skill for the postpartum period. तो इसमें मॉडिफिकेशन जब इतना किया गया था कि फीमेल को लेबर की प्रोसेस और डिलीवरी के अलावा न्यूट्रिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, इन्फेंट फीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, सिजेरियन बर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, इसके अलावा डिफरेंट लेबर प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, जैसे फॉरशिप डिलीवरी है, वैक्यूम डिलीवरी है। डिस्कशन किया गया सेक्सुअलिटी के बारे में, जैसे कि रिगार्डिंग द क्वार्टर्स, शी शुड अवॉइड द क्वार्टर्स ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, ओके। parenting के बारे में, how you will maintain your health, your baby health even though after the delivery also, coping the skill for the postpartum period and what you have to do to maintain your health after the delivery of the baby, ठीक है। कि अगर आपकी हेल्थ मेंटेन होगी तो बेबी की हेल्थ भी क्या होगी, मेंटेन रहेगी। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो। मुझे आप लेट क्यों आए? मैम कनेक्ट ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। मैम नेटवर्क ही नहीं था। नेटवर्क नहीं था, ओके। यस। तो बच्चे कल टाइम से आना, ठीक है। ओके मैम।